Assalamu alaikum. My name is Aisha Noor and my group members are Mubin Ali and Mohammed Wasik Nadeem. We have made a website of hospital management system in which we tried to keep it user friendly to enhance users experience, and we provided easy access of all the essential features to user. If we talk about our home page, here we can clearly see a prominently displayed navigation bar at the top which contains options like home, appointment, about, gallery, contact, and login. For efficient management, this setup ensures a smooth browsing experience for users. Below this, as we see, each swipe reveals an information like individual approach to patient, committed to excellent medical clinic, etc. If we move below, here's a department section which is showcasing hospitals' specialization in neurology, traumatology, dentistry, cardiology, pediatrics, which shows the diversity of the services offered by the hospital. In the last section, we can see the information for easy contacting with the hospital management and navigation and easy navigation. If we move to the appointment section, we can see a form which is titled as Make an Appointment, in which the first text box is for selecting the department. This helps the hospital to make your appointment direct to the right department. Next text box is for name, gender, phone, email, select date, and then we can click on the Make an Appointment button to easily confirm your appointment. About section provides more information about the hospital and displays different services offered by hospital. Here the services include emergency help, heart surgery, emergency care, dental care, individual approach, and qualified doctors. Hospital aims to ensure the patients to receive the care they need. Now when we click to the gallery section, it displays the various images of hospitals and doctors treating their patients. It is the visual representation of dedicated healthcare. Next option on our navigation bar is contact. This portion contains all the essential information to contact hospital and reaching out the hospital. Additionally, it contains a form to contact hospital management online, by which you need to enter name, email, and you can type your message, and by clicking the send button, this message will be sent to hospital management. Last portion is login. In the option of the login, here we provided features for both existing and new users. Existing users can easily enter their username and password and can log in, but for the new users who are visiting our website for the first time can use our sign up button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आगे आयशा ने वेबसाइट का ओवरव्यू एक्सप्लेन किया है, इसके बाद हम इसके कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो मेन हम एक्सप्लेन करेंगे वो होगा मास्टर पेज। मास्टर पेज में क्या होगा? मास्टर पेज होता है जो मेन पेज होता है, उसमें सारे ASPX के जो भी पेज होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। मास्टर पेज के अंदर जो हमने बेसिकली कोड किया वो HTML, CSS और जावा का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले डिव टैग हमने इस्तेमाल किया है। डिव टैग में कॉन्टैक्ट डिटेल हमने यूज़ की है। कॉन्टैक्ट डिटेल जो हमने जिस तरह वेबसाइट पे आगे शेयर किए मैं आपको बताता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल हमने किधर रखी हुई है। एक बार स्क्रीन शेयर करके ये कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी, ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने इसके थ्रू शेयर की है। उसके बाद हम आते हैं वापस कोड की तरफ। ये कॉन्टैक्ट डिटेल थी। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमने एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा उसकी जीमेल, ट्री आइकन और उसके बाद इसकी मतलब जो भी वेबसाइट का नाम है वो हमने किया है। ये जो वेबसाइट का नाम है हमने एंकर टैब के थ्रू यूज़ किया, टोटली HTML का यूज़ किया। उसके बाद कॉन्टैक्ट को लेफ़्ट करने के लिए हमने ग्रिड का इस्तेमाल किया है। देन नीचे अगेन हमने डिव के टैग के थ्रू फ्रॉम ग्रुप में लेबल वगैरह इसका इस्तेमाल किया है। ईमेल का लेबल हमने इस्तेमाल किया है। देन मूव ऑन नेक्स्ट, ASP बटन है जो सबमिट बटन हमने नीचे यूज़ किया हुआ है। अपना जो भी फीडबैक होता है उस बटन को पुश करने के लिए हमने बटन का यूज़ करके उसका इस्तेमाल किया है। ये सारा HTML टैग है। और डिव का मतलब ये है कि हमने हर पार्ट को डिव इसलिए किया है, एक तो ये इसके थ्रू रिस्पॉन्सिव हो जाता है, सेकेंडली ये होता है कि डिव की मदद से हम हर सेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह हमने
डिव के बटन को डिवाइड किया है, डिव के थ्रू टेक्स्ट को डिवाइड किया है, डिव के थ्रू नेविगेशन बार को हमने डिवाइड किया है। ये टोटली डिव का इस्तेमाल इसमें इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ तक तो ये हमारा मास्टर पेज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं करता हूँ जी, ये हो गया मास्टर पेज। मास्टर पेज के हम आते हैं रजिस्ट्रेशन वाला ASPX का डाटा पेज है। ASPX में क्या होता है, ये रन एट सर्वर होता है ना। ASPX में जो भी हम चेक करते हैं, इसमें काम करते हैं एट अ सर्वर साइड करते हैं, और ये मास्टर पेज के अंदर सारा काम हो रहा होता है। एक ही मास्टर पेज होता है, उसमें मनी ASPX पेज हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ASPX जो रजिस्ट्रेशन वाला है इसमें हमने किस तरह काम किया हुआ है। और एक और बात, ये मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि ये रजिस्ट्रेशन वाला काम किधर यूज़ हो रहा है। हम आते हैं, इसको पहले रन करते हैं। यहाँ से जो अपॉइंटमेंट वाला पोर्शन है, यहाँ से हम सारी इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं कि मतलब हमारा डॉक्टर कौन है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, इसके अलावा डिग्नोस्टिक्स है, या जो भी इशू है वो हमसे यहाँ से डॉक्टर अपना सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेम, जेंडर, ईमेल, सेलेक्ट डाटा। यहाँ से हम जो अपॉइंटमेंट बनाते हैं वो बेसिकली हम रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में कर रहे हैं। वापस अगेन कोड की तरफ मूव करते हैं। इसका हमने स्टाइल किया है, इसमें स्टाइलिंग का यूज़ किया है, CSS का स्टाइल यूज़ किया है, जिसमें हमने यूज़र नेम के लिए इस्तेमाल किया है 172 पिक्सल इसके लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद हम आते हैं जी, टेक्स्ट बॉक्स हमने इसमें यूज़ किया है। ज़ाहिर बात है जो यूज़र नेम इंटर करेगा वो टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करेगा। नेक्स्ट मूव हम करते हैं, इसमें हमने टेबल रो का टैग यूज़ किया, टेबल डाटा और टेबल रो का ज़्यादातर हमने टैग का यूज़ किया, बिकॉज यहाँ पे टोटली टेबल का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके बाद ये इसमें सारा जितना भी उसका पासवर्ड इंटर होगा, उसके बाद उसका नेम इंटर होगा, अलाइन सेंटर किया है। टोटली हमने ना HTML का इसमें इस्तेमाल किया है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला ये सारा पोर्शन है जिसमें हमने मेन इस्तेमाल किया है। ये देख लें लिंक बटन का। लिंक बटन का मतलब ये होता है कि जब हम इसमें क्लिक करेंगे ना तो ये डायरेक्ट उस पेज पे लिंक हो जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन के बाद आते हैं लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज की तरफ जब मैं मूव करता हूँ तो ये आपने देखा भी होगा कि उसमें आगे मुझसे पहले ग्रुप मेंबर ने आपको ओवरव्यू दिया है कि लॉगिन का, साइन इन का, साइन अप का। तो लॉगिन में क्या होता है कि जब हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं ना, न्यू यूज़र आता है, वो अपना सारा कुछ न्यू डाटा एंटर करता है ना, तो वो स्टार्टिंग से लॉगिन करना शुरू कर देता है। इसलिए इसके लिए हमने HTML का यूज़ किया। सबसे पहले सेंटर टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हेडर का टैग यूज़ किया है, टेबल का टैग यूज़ किया है। टेबल का टैग इसलिए बार बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डाटा हमारा एज अ टेबल शो हो रहा है। उसके बाद टेबल में टेबल डाटा, टेबल रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसके बाद नीचे फुल स्पेन का टैग हमने यूज़ किया है क्योंकि नीचे जो हमने आखिरी रो इस्तेमाल किया वो 2 कॉलम के जोड़ के इस्तेमाल किया है। बाकी सिंपल सारा जो HTML में हम इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल हो रहा है इसमें। उसके बाद आते हैं जी होम पेज पे। होम पे क्या है कि जब भी होम पे क्लिक करेगा ना तो जो उसका ओवरव्यू होगा वो होम होगा, जिस तरह वो उसकी स्क्रीन मतलब रोटेट कर रही है, मूव कर रही है मेन से। ठीक है, आगे उसने आपको दिखाया है। उसके बाद होम के नीचे जो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह, हॉस्पिटल का नेम, ये सारी चीज़ें होम में शो होती हैं। या उसने अपना कुछ मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट शो की हुई है, जैसे फ्री चेकअप का ये यूज़ किया हुआ है, ये सारा होम पेज में होता है। अब बार बार आपको मैं दूसरी तरफ इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट है हमारे पास, अभी भी थोड़ा मेरा टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसलिए मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज आपने पहले वो देख चुके। बताने का मकसद यही था कि एक बार ओवरव्यू वो पहले आपने ले लिया, इसके बाद कोड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, इसने डिपार्टमेंट्स का, फ्री चेकअप का, ये सारा कुछ हेडर के थ्रू H3 यूज़ किया हुआ है, H3 और H4 यूज़ किया हुआ है कि ज़्यादा थोड़ा बोल्ड नज़र आए। उसके बाद नीचे हमने डॉक्टर्स वगैरह के नाम शो किए हुए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई होम पेज पे आता है तो वो सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को देखता है। तो डॉक्टर्स के लिए इसलिए हमने ये सारा काम होम पेज पे किया हुआ है। ये सारा आप देख सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट्री, उसके बाद पुल्मनरी। इसके बाद मैंने इसमें एक इटैलिक टैग यूज़ किया है कि ये थोड़ा सा उसको डिफरेंट करने के लिए। अगेन बाकी सारा एक ही जो पल्मनरी के लिए यूज़ किया वहीं सेम सारा उन्हीं के लिए यूज़ किया। लेट्स सी, इसके लिए एक क्लास बनाई है, इसके लिए जो मैंने हेडिंग यूज़ किया है, इसके लिए जो मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, सेम सारों में वहीं कॉपी किया, जस्ट उनका नेम चेंज कर दिया। इसके बाद आगे मज़ीद जो 4 ASPX के पेज हैं, गैलरी का, फॉरगेट पासवर्ड का, कॉन्टैक्ट का, अपॉइंटमेंट का और अबाउट का मैंने कर दिया। अपॉइंटमेंट तक ये 4 पेज आपको वासिक एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अबाउट क्या चीज़ थी।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं गैलरी वाले पेज से स्टार्ट करूँगा। इसके अंदर हमने बेसिक HTML यूज़ की हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर नेविगेशन बार बनाए हैं। उसके अंदर हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जिसको हमने टाइटल दिया है गैलरी का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन हमने उसकी क्लास गैलरी रखी है। उसके बाद हमने काफ़ी सारे से डिव सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह है। इमेजेस हमने इसके अंदर ऐड की हैं। इमेजेस मेरे फोल्डर में इसमें पड़ी हुई हैं सारी, जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हुई हैं ना। साथ हमने इसे फंक्शनल बनाने के लिए इसके अंदर जावास्क्रिप्ट और CSS का भी यूज़ किया है। हमने फंड्स भी गूगल से डाउनलोड किए हैं। डिफरेंट फंड्स हैं और डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रही हैं, तो वो सारी फंड्स जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं और वो उसके लिए भी फोल्डर बनाया हुआ है। अच्छा, तो गैलरी वाले पेज के अंदर हम लोगों ने बेसिक जो भी हॉस्पिटल का ओवरव्यू था वो दिया है कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और हॉस्पिटल का काम वगैरह। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है फॉरगॉट पासवर्ड। अगर कोई यूज़र अपना अकाउंट बनाता है एंड इफ़ ही फॉरगॉट्स हिज पासवर्ड, तो वो अपना पासवर्ड रिकवर कर सकता है। जो भी उसने अपना ईमेल उस नंबर वगैरह दिया होगा, उस नंबर पे मैसेज वगैरह आएगा। तो इसे हम लोग और भी फंक्शनल बना सकते हैं, लाइक हम लोग कोई प्रॉक्सी सर्वर वगैरह ऐड करके और साथ उसके नंबर पे मैसेज वगैरह आए। तो इसके अंदर भी हम लोगों ने HTML यूज़ किया है। यहाँ पे पेज डिज़ाइनिंग HTML से हुई है, पीछे सारा वर्क जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड के टैब पे जाएंगे, फर्स्ट कहेगा कि आप ओल्ड पासवर्ड एंटर करें, फिर आपको कहेगा कि आप न्यू पासवर्ड एंटर करें। इसके बाद है हमारे पास contact.aspx का पेज। तो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने के लिए हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। साथ ही हमने वहाँ पर हॉस्पिटल की ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और नंबर वगैरह दिया हुआ है, जो कि हम सबसे पहले सेक्शन में देख चुके हैं, जो कि आयशा ने एक्सप्लेन किया है। डिव क्लासेस यूज़ की, उसके बाद हेडिंग यूज़ की ताकि क्लियर हो जाए काफ़ी सारा। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल का ईमेल, हॉस्पिटल का टेलीफोन नंबर, हॉस्पिटल का वेबसाइट एड्रेस एंड हॉस्पिटल का फिज़िकल एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। फॉर्म हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि सेंड एस ए मैसेज। अब मैसेज में कोई कंप्लेन भी हो सकती है, कोई सिचुएशन वगैरह भी हो सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन किया है। उसके बाद फॉर्म के अंदर हम लोगों ने नेम लिया है यूज़र से, उसका ईमेल लिया है एंड देन उसका मैसेज दिया हम लोगों ने यूज़र से। ये यहाँ पर हम लोग उसका मैसेज ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाएं तो हमारे पास है अपॉइंटमेंट का पेज। अब अपॉइंटमेंट इज़ मेन थिंग इन आवर प्रोजेक्ट। हम लोग कोई भी यूज़र आएगा, जब भी उसने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तभी वो हमारी हॉस्पिटल की वेबसाइट का विज़िट करेगा। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के सेक्शन में हमारे जो भी 6 डिपार्टमेंट्स हैं, हम लोगों ने उनका जिक्र किया हुआ है। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपॉइंटमेंट के अंदर एक ड्रॉप डाउन सेक्शन बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। जिसके बाद अगर हम लोग आ जाएं, यूज़र से हम लोग उसका नेम ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग उससे उसका जेंडर ले रहे हैं। जेंडर के अंदर हम लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है मेल एंड फीमेल की। थर्ड चीज़, हम उससे उसका फ़ोन नंबर ले रहे हैं, फिर उसका ईमेल ले रहे हैं, फिर उसकी जिस डेट की उसने अपॉइंटमेंट वगैरह करवानी है, मतलब उसकी ईज़ के हिसाब से, तो हम लोग वो डेट वगैरह ले रहे हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।